تو علامہ صاحب سے یہ میری گزارش ہے کہ جو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں وہی کریں، کیونکہ درود پاک کا موضوع تو جمعہ کے موقع پر بھی ہو گیا تھا۔ علامہ صاحب جمعہ کے موقع پر بھی میں نے درود السلام پر ہی خطاب کیا تھا۔ تو جو آپ آسانی سے جو بھی خطاب فرما سکتے ہیں وہی فرمائیں، اگر درود و سلام رکھنا چاہتے ہیں تو وہی رکھ لیں، مگر آج کا دن سارا درود و سلام کے نام عرس کا دن، صبح سے یہی چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خطاب سنیں گے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اپنے من میں جگہ دیں۔ حضرت علامہ فیاض بشیر قادری صاحب۔ ایک کو مت کر دیں۔ یہ بند کریں، یہ جو واپس آ رہے ہیں اس کو بند کریں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تو حضور خود نیچے بیٹھ جاتے اور حسان کو اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے عرض کی ہے، وہ سنت ماشاءاللہ پوری اولاد میں نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، سادات میں نظر آ رہی ہے۔ غلاموں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں اپنے نانا پاک کی نعت سننے کے لیے، ورنہ یاد رکھیں سادات کے در کے کتوں سے بھی ہمیں نسبت ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سر کا تاج اور فخر ہے۔ اس لیے میں نے قبلہ سے، حضور سے، سادات سے اجازت کے ساتھ یہ کرسی پر بیٹھنا ذرا مجبوری ہے، اس لیے حضور کی اجازت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے یہ کو نہیں بند ہو رہی، یہ جو ڈبلنگ آ رہی ہے نا اس کو بند کر دیں۔ ہاں بس ٹھیک۔ ابھی خطاب باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم اولاد علی جگر گوشائے سیدہ کائنات علیہم الصلاۃ والسلام مختوم حضرت سید حسن علی شاہ صاحب بخاری حضرت سید مخدوم عنایت علی شاہ صاحب بخاری پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت سید مخدوم اقبال حیدر شاہ صاحب بخاری اور پیر سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، سب کا ذکر ہے اور سیدہ کائنات کی اولاد کا ذکر ہے۔ ان کے عرس کی تقریب میں بحمد اللہ تعالی ہر سال اللہ رب العزت خاص کرم فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی اولاد کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں، بلکہ ابھی تو سامنے دنیا ہے، جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا اس محفل کی عظمت کیا تھی۔ جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ نسبت کیا تھی۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، محترم پیر سید نوازش علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی، محترم پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب بخاری،
दीगर मुअज़्ज़ज़ सादात, उलमा कराम, मेहमानान ग्रामी क़द्र और हाज़रीन महफ़िल उर्स पाक, अभी जब मैंने मोहतरम सैयद मोहती हैदर शाह साहब उस नन्हे बच्चे को सुना तो उसमें जो करंट नज़र आ रहा था वो सादात वाला, तो यूँ लगता है कि ये फूल खिलेगा और इसकी महक इंशाअल्लाह आलम में फैलेगी और एक आलम इंशाअल्लाह सादात के फैज़ से सैराब होगा जो अभी भी हो रहा है। अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे, इन्हें अपने आबा व अजदाद की नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अभी शाह साहब ने कहा कि मौजू कोई भी रख लें, तो मेरे जहन में हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन का एक मौजू आ गया है। अब मैं चाहता हूँ बस वही आपके गोश गुजार कर दूँ। वो ये है कि और बचपन के मौजू में मैं अक्सर, यानी ये बात मैंने अक्सर, मुमकिन है यूट्यूब पे भी मौजूद हो, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है जिस तरह इन्होंने आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना, ये पढ़ी तो मुझे सैयदा हलीमा सादिया याद आ गई। वो हर वक्त जलवे तकती रहती थी। तो मेरा जी चाहा कि मैं उसी बात को ताज़ा करूं और शायद ये बात सुनाने की हुज़ूर किबला बरकत है या इनाम है कि अभी पिछले माह मुझे उम्रे की शहादत हासिल हुई और मैंने सैयदा हलीमा सादिया, उनका वो घर, वो गांव जहाँ हुजूर बकरियाँ चराया करते थे, जहाँ सैयदा उन्हें लोरियाँ सुनाती थीं, जहाँ हज़रत शीमा जो हलीमा सादिया की बेटी थी बकरियाँ चराने आती तो हुजूर को गोद में लेकर बैठ जाती थी। वो सारी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस वक्त इसकी सआदत अता फरमाई, उसकी ज़ियारत करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी चाहता है बस उन्हीं की बात थोड़ी कर लें। मिलाद की जब बात होती है तो याद रखें सैयदा हलीमा सादिया का मिलाद में बहुत बड़ा हिस्सा है। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा करें जिस महबूब की खातिर अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, सुभान अल्लाह। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, प्यारे तुझे ना बनाता तो कोई शय ही ना बनाता। तो वजह तख्लीक़ कायनात हुजूर की ज़ात है। तो जिस महबूब के लिए ये सारी कायनात बनाई, उसे ज़ाहरी हयात तय्यबा के जो कमो बेश 63 साल अता फरमाए, ज़ाहरी हयात तय्यबा के, आप अंदाज़ा करें उस अजीम औरत की गोद का आलम क्या होगा कि पहले 4 या 5 साल अल्लाह पाक ने खिदमत के उन्हें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। खादिमा बनी, हुजूर की खादिमा बन गई। अब वाक़या ये है कि जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, ये इंतहाई कहत साली का साल था। तारीख़ इंसानी में इससे बड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बशमूल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत के, इससे पहले इतना शदीद कहत कभी ज़मीन पे नहीं हुआ था जितना शदीद कहत आका अलैहिस्सलाम की विलादत के साल हुआ था। मौरख़ीन लिखते हैं कि जानवर तो जानवर, इंसान भी भूखे मरने लगे और इस कहत ने पूरे अरब को अपनी लपेट में ले लिया। और सबसे ज़्यादा कहत से जो कबीला मुतासर हुआ, जहाँ भूख आई, जहाँ प्यास आई, जहाँ गुर्बत आई, खेत उजड़ गए, दरख्त खुश्क हो गए, इंसान मरने लगे, वो बनु साद का कबीला था। अब कबाइल में बनु साद का कबीला था
اور بنو سعد کے قبیلے کی رہنے والی تھی حلیمہ سعدیہ، اس لیے انہیں سعدیہ کہتے ہیں۔ اور اگلی بات، پھر بنو سعد کے قبیلے میں سب سے زیادہ قحط نے جس خاندان کو متاثر کیا وہ خاندان بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ فرماتی ہیں کہ کھانے کے لیے آپ کے پاس ایک اونٹنی ہوتی تھی، تو چونکہ کھیت اجڑ گئے، درخت ویران ہو گئے، اس کو چارہ نہیں ملتا تھا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایک ریوڑ تھا بکریوں کا، اس سارے بکریوں کے ریوڑ کا دودھ دوتے تو فرماتی ہیں پاؤ بھر یا آدھا کلو نکلتا پورے ریوڑ کا۔ اور آپ کا یہ عالم کہ فرماتی ہیں دیا جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں ہوتا تھا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن گزر جاتے، نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا۔ لوگوں، شاہ صاحب یہ اتنی بڑی خدمت کیسے ملی؟ سیدہ کائنات سیدہ حلیمہ سعدیہ کو حضور کی خدمت کیوں ملی؟ جہاں بڑی اور باتیں تھیں وہاں ایک بات سن لیں، بنیادی نقطہ۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ہم حضور کے نوکری چاہتے ہیں، جی کہتے کہ نہیں کہتے؟ کون چاہتا ہے نوکری؟ سارے چاہتے ہیں۔ آؤ حلیمہ سے پوچھتے ہیں نوکری ملتی کیسے ہے، انہیں اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ تاریخ میں آتا ہے 4 دن نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا، مگر قربان جائیں ہمارا ایمان تو 2 ٹکوں پہ بک جاتا ہے، 2 ٹکوں پہ بیچ دیتے ہیں ایمان، اور پھر نعرے لگاتے ہیں حضور کی غلامی کی۔ 4 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مگر زندہ ضمیری اور ایمان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ 4 دن بھوکی پیاسی رہتی مگر کسی غیر کے دروازے پہ جا کے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی ایسے نہیں کیا، کبھی غیرت نہیں بیچی، کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا، کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اس نے بھوکا رکھا تو اسی کے دروازے پہ رہی، اس نے کھانے کو دے دیا تو اسی کے دروازے پہ رہی۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں، ہوتا ہے نا آپ بڑے غیرت مند ہیں، بڑے خوددار ہیں، اور آپ کسی سے کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، خودداری ہے آپ کے اندر، مگر آپ 2 دن سے بھوکے ہوں، بچے بھوکے ہوں اور ہاتھ پھیلانے کی عادت نہ ہو، تو آپ کا کوئی پیارا آ جائے گھر میں، دوست آ جائے، تو باتوں باتوں میں اگر آپ مانگتے نہیں تو دل چاہتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو کوئی باتوں میں اشارہ کر جاتے ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں سہیلیاں آتی، ان کے غربت کے غم میں شریک ہوتی، مگر ان کی باتوں سے ذرہ برابر بھی بو نہیں آتی تھی، کوئی سمجھ نہیں پا سکتا تھا کہ اس خاتون کو 4 دن گزر گئے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا۔ جب بے ہوش ہو کے گر جاتی تو پھر راز کھلتا کہ اس نے تو 4 دن سے کھایا کچھ نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اے حلیمہ، تو نے غریبی میں بھی امیری کی شان پائی ہے، تو کسی دنیا دار کے دروازے پر پیسوں کے لیے منگتی بن کے کسی کے تلوے نہیں چاہتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی فلاں بڑے بادشاہ سردار کے آگے نہیں جھکی ہے تو ایک ہی بادشاہ کے آگے جھکی، اس کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، آواز آئی ہاں حلیمہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو اپنی غیرت نہیں بیچتا،
جو اپنا ضمیر نہیں بیچتا، جو اپنا ایمان نہیں بیچتا، جو 2 ٹکوں کی خاطر اپنی عزت کا نیلام نہیں کرتا، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہی مصطفیٰ کی عزت کا محافظ ہوگا، وہی حضور کے دین کا نوکر بن سکتا ہے جو ضمیر نہیں بیچتا۔ اللہ پاک کو ادا پسند آ گئی، اے حلیمہ تو نے خیرت نہیں بیچی، جو خیرت فروش نہیں ہوتے وہ مصطفیٰ کے خادم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت تک اصول بتا دیا، جس کا ایمان، جس کا علم 2 ٹکوں پہ ٹک جائے وہ ساری دنیا کا نوکر ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا نوکر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا کے قارون اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے خزانے اکٹھے ہو جائیں، جس کی چوٹی کا سودا نہ کر سکے مصطفیٰ کا غلام وہی بنے گا، حضور کا دین وہی زندہ کر سکے گا۔ نوکری نعروں سے نہیں ہوتی، نوکری اس کا نام ہے۔ پہلے اپنی عزت بچانا سیکھو، پھر تمہیں مصطفیٰ کی عزت کا محافظ بنا دیا۔ جو اپنی عزت بیچ دیتا ہے وہ حضور کا غادر کیا بنے گا؟ تو قربان جائیں، 4 دن نہ کچھ کھانے کو ملتا، نہ کچھ پینے کو ملتا، مگر کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اب رواج عرب کا یہ تھا۔ اب اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں، ہم بسا اوقات نا کسی نے پتہ نہیں کیا شعر لکھ دیا، شاہ صاحب آپ نعت خوان پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ در در جاتی تھی، پڑھتے ہیں نا کوئی اس طرح کا، میں مفہوم اس کا بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ سنا دیں گے۔ وہ در در جاتی تھی اور خیر نہیں ملتی تھی، جیسے دائیوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس گھر گئی تو بچہ مل گیا، اس گھر گئی تو بچہ، وہ در در جاتی تھی اور خیر نہ ملتی تھی۔ اور آگے لکھا حادثتاً، جیسے حضور کے در پہ آ گئی تو خیر مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں ایسی بات کہنا، ارے جو 4 دن بھوکی رہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے وہ کس کے در جاتی ہو؟ ایسی بات کہنا اس عظیم خاتون کی بے ادبی ہے۔ وہ کسی در نہیں جاتی تھی، صرف مصطفیٰ کے در پہ آئی۔ اور سن لو، جو مصطفیٰ کے در کے ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی در پہ نہیں جاتے، سارے ان کے در پہ آتے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو دیکھ لے، کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ دیکھ لے، یہ دیکھ لے، آج ان کی اولاد کا در ہے جو اس در کے ہیں، مصطفیٰ کی اولاد کے در پہ ہیں، وہ مصطفیٰ کے در پہ، پھر انہیں کسی در کی ضرورت نہیں رہتی، یہ بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو وہ در در نہیں جاتی تھی، نہ حضور سے پہلے کسی کی دائی بنی، نہ حضور کے بعد کسی کی دائی بنی، مصطفیٰ نے دائی بنا دیا۔ اب وہ دائی کا پیشہ نہیں کرتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب کا رواج تھا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، والدین بیٹا 2 سال کے لیے دائی کو دے دیتے۔ مکہ یہ رؤسا کا، سرداروں کا، وڈیروں کا، تاجروں کا، امیروں کا گڑھ تھا۔ ابو جہل ادھر، ابو لہب ادھر، ابو سفیان ادھر، عتبہ ادھر، شیبہ ادھر، ابو بکر ادھر، بڑے بڑے ولید بن مغیرہ ادھر، تو بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے سردار ادھر تھے۔ تو دائیاں اطراف و اکناف سے آتی، وہ بچے لے جاتی۔ 2 سال دائی اپنے بچے سے زیادہ اس امیر کے بچے کی پرورش کرتی، اور جتنی اچھی پرورش کرتی پھر وہ جتنا امیر ہوتا اپنی حیثیت سے اسے 2 سال کی خدمت کا اتنا معاوضہ دے دیتا کہ پھر کئی سال وہ گھر بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ اب حلیمہ سعدیہ دائی نہیں تھی، کھیت اجڑ گئے،
बनु साद से दाइयाँ जाती थीं जो इनकी सहेलियाँ थीं, वो इनके घर आईं। उन्होंने कहा हलीमा अपना जिस्म देख, खाना ना खाने की वजह से हड्डियों का ढांचा बन चुका है, घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं, हारिस भी कुछ नहीं करते, जब खेत ही उजड़ गए तो काम भी बंद हो गया, तो क्या ही अच्छा हो रबीउल अव्वल, पहली बहार का मौसम। उन्होंने कहा कि जब रबीउल अव्वल आता है हम मक्के जाती हैं, अमीरों के, सरदारों के, वडेरों के बच्चे ले आती हैं और उन्हें पालती हैं, तो क्या ही अच्छा हो रबीउल अव्वल आ रहा है, बहार का मौसम। मगर उन नादानों को क्या खबर थी कि इस दफा बहारों की बहार भी आ रही है। उन्हें क्या पता था। उन्होंने कहा हम जाएंगी तो तू भी हमारे साथ चल, दाई पुना कर ले, दाई बन जा। मुमकिन है किसी वडेरे का, सरदार का, अमीर का तुझे बेटा मिल जाए, तेरे दिन भी सवर जाए। कहती है मेरे अंदर एक चमक आ गई, जैसे कोई 2 साल तक बेरोजगार हो और कोई दोस्त कहते कि 10 दिन के बाद कतई तौर पे मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और 1,90,000 तुम्हारी तनख्वाह भी लग जाएगी, तो उसके दिल में चमक आ जाती है ना कि क्या हुआ 2 साल ऐसे गुजरे, चलो चंद दिनों की बात है, मेरे दिन भी सवर जाएंगे। तो कहती है मेरे अंदर एक चमक आ गई, रबीउल अव्वल तुलू हो गया, बहार का मौसम आ गया, उधर बहारों की बहार भी आ गई। बनु साद से 10 दाइयों का काफिला, 9 दीगर, 10वीं हलीमा सादिया। फरमाती हैं काफिला निकला। अब फरमाती हैं चूंकि वो पेशावराना दाई थी, उन्होंने सफ़र करना होता था और बनु साद से मक्के का सफ़र 3 दिन की मुसाफत पे था उस दौर में। अब ऊँटनियों को वो ज़्यादा खिलाती थी और मेरी ऊँट चूँकि दाई तो थी ही नहीं, तो ऊँटनी कमज़ोर सी थी, लिहाजा वो तेज़ी से पहले चली गई और मैं कमज़ोर ऊँटनी की वजह से पीछे रह गई। अब खुदा जाने पीछे रह गई या रख ली गई, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहती है मैं पीछे रह गई। अब उधर आ जाएं। उधर मक्के का रिवाज ये था कि जिसके यहाँ बेटा पैदा होता उसका बड़ा बाप होता, तो बाप, ताया, चचा, दादा जो भी होता, वो सुबह सुबह अपने घर से निकल के दरवाजे पर गली में खड़ा हो जाता। ये अलामत होती कि आने वाली दाई को दर दर ना जाना पड़े। आप हलीमा को ही दर दर ले गए। ये अलामत होती कि वो दर दर ना जाए, उसे पता चल जाए कि शख्स खड़ा है, यहाँ बेटा हुआ है। हाय हाय, आपके दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं जब मेरे मोहम्मद आए तो मैं भी दरवाजे पर निकल कर गली में खड़ा हो गया और देखने लगा आज कौन है वो दाई जो मेरे मोहम्मद को ले जाएगी। फरमाते हैं मैं खड़ा था, एक दाई आई, सलाम दुआ हुई, पूछा बेटा है? हाँ जी बेटा है। वो पूछती बाप का कारोबार क्या है? आप बात समझे? वो पूछती बाप क्या करता है? आप कहते मैं उसे कहता नहीं इसका तो बाप ही नहीं, ये तो यतीम है। वो जब यतीम का नाम सुनती अगली बात ही ना करती, मुंह फेर के चली जाती। 1 आई चली गई, 2 आई चली गई, 9 दाइयां जब मुंह फेर के चली गई तो फरमाते हैं दिल पर आया, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा आज सारी दाइयां मेरे मोहम्मद को छोड़ जाएंगी। कहते हैं खुदा की कसम इस ख्याल का आना था, हातफ़े गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब अपने आंसू पोंछ दे और ये ना समझ कि ये दाइयां तेरे मोहम्मद को छोड़ रही हैं। अरे नहीं, ये अमीरों के दर की गदाई करने वाले, ये चौधरियों के पीछे जाने वाले, ये मालदारों के दर पर जाके भिखारी बनने वाले, ये इस काबिल नहीं कि इन्हें मुस्तफा की नौकरी दी जाए। इन्होंने क्या मोहम्मद को छोड़ना है?
नहीं मोहम्मद खुद इन्हें छोड़ रहे। मोहम्मद उन्हें छोड़ देते हैं जो दरे मुस्तफा छोड़कर अमीरों के दरों के गधा बन जाते हैं, जो दरे मुस्तफा छोड़कर, मुस्तफा के गुलामों का दर छोड़कर, मुस्तफा की औलाद का दर छोड़कर, मुस्तफा का दर छोड़कर जो चौधरियों बटेरों के दर दर पे रहते हैं, उनका क्या वास्ता मुस्तफा से? क्या उनके नारे से गुलामी हो जाती है? उनका क्या ताल्लुक मुस्तफा से? खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा के शेर अरे गरीबी में भी अमीरी की शान से जीते हैं। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से, गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं। अरे ये दुनिया के खजाने क्या है? नादां तुझे क्या खबर, तेरे पास इल्म का खजाना है, तेरे पास कुरान का खजाना है, मुस्तफा की हदीसों का खजाना। तो बात ये नहीं है कि ये दाइयां छोड़ रही हैं, मोहम्मद खुद इन्हें छोड़ रहा है। तू खड़ा रहे, एक दाई आएगी दुबली पतली सी होगी, हाय हाय, ऐसे कपड़े होंगे, ऐसी चाल होगी, ऐसा चेहरा होगा, ये रंग ढंग होगा, और साथ ही बताया नाम उसका हलीमा होगा, रहने वाली बनु साद की है, वो है तेरे मोहम्मद की दाई। वो फरमाते हैं अब मैं समझ गया कि बात इधर से नहीं, बात तो सारी उधर से है। वो फरमाते मैं इत्मीनान से खड़ा हो गया। इधर हलीमा फरमाती हैं कि वडेरों के, अमीरों के, सरदारों के बच्चे लेकर दीगर दाइयां वापस पलट रही थी, और मैं दूर भी आ रही थी और वो बच्चे लेकर वापस जा रही थी। रास्ते में मुलाकात हुई, रोक के कहती हैं हलीमा क्या करें, तेरा मुकद्दर ही माड़ा है। हाय 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 हाय, नादानो, जिसे तुम आज कह रही हो कि तेरा मुकद्दर माड़ा है, तुम्हें क्या खबर, जमाना कहेगा हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके। किसको मुकद्दर माड़ा कह रही? तो कहती हैं तेरा मुकद्दर ही माड़ा है, जितने वडेरों के, सरदारों के, अमीरों के बच्चे थे वो तो ले लिए हमने, अब एक यतीम रह गया है। आया आया, मिलेगा कुछ नहीं। नादानो तुम्हें क्या खबर, जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ आई हो। अरे जमाने के सुल्तान इसी के दर के टुकड़े खाकर तो सुल्तान बनेंगे। उन्होंने कहा मिलेगा कुछ नहीं, यतीम है, मर्जी है ले लो, मर्जी है ना लो, मिलेगा कुछ नहीं। अब सैयदा हलीमा कहती हैं वो जो चमक नहीं आई थी वहीं बुझ गई, वहीं बुझ गई। और अब होता है ना, आप मकसद, आप सफर करें थोड़ा, मकसद पूरा ना हो तो तबीयत पे बोझ नहीं आ जाता, यार आज दिहाड़ी मर गई, हाँ बोझ आ जाता है। लंबा सफर हो मगर मकसद पूरा हो जाए, तबीयत पे बोझ नहीं आता। फरमाती हैं तबीयत बुझ गई कि अब क्या करें। मैंने हारिस से कहा हारिस क्या करें, यतीम है, कुछ नहीं मिलना, वो बता रही हैं वापस चले। हारिस ने कहा हलीमा इतनी दूर सफ़र करके आए हैं, अब यहाँ से खाली चले जाएं, अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। यतीम है तो क्या हुआ, ले लेते हैं, आगे अल्लाह की मर्जी। अब कहती हैं तबीयत बुझ गई मगर इरादा कर लिया कि लेना है। अब इस कैफियत में, समझ आ गई ना, अब इस कैफियत में चलने लगी कि मिलना कुछ नहीं मगर इरादा कर लिया था लेना है। हाय हाय हाय, अब कुर्बान जाए, फरमाती हैं उस महबूब की गली आ गई, उस महबूब की गली आ गई। जब मैं गली में दाखिल हुई तो मैंने क्या देखा, अब्दुल मुत्तलिब की निगाह मुझ पे पड़ी। कहती हैं ये जिंदगी की पहली मुलाकात थी, इससे पहले ना मैंने कभी उन्हें देखा
न उन्होंने कभी मुझे देखा, लेकिन जो ही उनकी निगाह मुझ पे पड़ी तो वो ऐसे खिल से गए, ऐसे खुश से हुए जैसे कोई देर से किसी का मुंतजिर हो और अचानक आने वाला आ जाए तो वो खुश नहीं हो जाता। इस तरह उनका चेहरा खिल गया। मुझे बाकायदा महसूस हुआ ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने दिल में महसूस किया ये मेरे इंतज़ार में। खैर खामोश रही। अब वो चाल ढाल, कपड़े, नैन, नक्श सब वही था जो बताए गए थे। अब नाम और कबीला रह गया था। कहती हैं सलाम दुआ हो गई, बेटा है वो बात हो गई। उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहती है मैंने कहा हलीमा। जो ही कहा ना हलीमा तो ऐसे खिले, कहते हलीमा बहुत प्यारा नाम है। खिल गए, बहुत प्यारा नाम है, हिल्म से निकला है, बुर्दबार को कहते हैं। फिर कहते हैं अच्छा ये बता तू आई कहाँ से है? कहती है मैंने कहा बनु साद से। कहते हैं फिर खिल गए, बनु साद से। अब वो सारी निशानियां पूरी हो गई। अब वो फरमाने लगे कि हलीमा मेरा पोता है, यतीम है, हमें खदशा है कि तू 2 साल मेरे पोते की खिदमत करेगी मगर तेरी खिदमत का सिला नहीं दे पाएंगे। अब फरमाती हैं मोहर लग गई, मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने पूछा लोगी? कहती हैं मैंने बुझे से दिल से कहा हाँ लूंगी, इरादा जो कर लिया था। मैंने कहा हाँ लूंगी। अब फरमाती हैं जब मैंने कहा ना लूंगी तो अब्दुल मुत्तलिब ने इशारा किया, कहा अच्छा जाओ फिर इस कमरे में अंदर चली जाओ। ये वो कमरा था जहां ताजदारे कायनात सोए हुए थे। वो कहती हैं जाओ, कहते हैं अंदर चले जाओ। कहती हैं खुदा की कसम मैं उस कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के यूं 2 ताक होते हैं ना। कहती हैं मैंने ऐसे खोले, बस ताकों का खोलना क्या था। कहते हैं खुदा की कसम अंबरो कस्तूरी और मुस्को गुलाब से बढ़कर हसीन खुशबुओं के हुल्लों ने मेरा इस्तेकबाल किया। सारा कमरा अजीब सी हसीन खुशबू से महका हुआ था। मैंने जिंदगी में कभी इतनी हसीन खुशबू ना सूंघी। हैरान हुई ये खुशबू कैसी है। अरे ये खुशबू थी बद्दुआ के मुखड़े की, ये खुशबू थी मुस्तफा की सांसों की, ये खुशबू थी यदुल्लाह के हाथों की। कहती है मेरी तबीयत में फरहत आ गई। खैर मैं आगे बढ़ी। अब आगे 4 पाई है। 4 पाई पे सैयदा आमीना आपकी अम्मी जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेटी हुई हैं। और जैसे नौज़ायदा होता है ना, नौज़ायदा माँ लेटी हो और नौज़ायदा माँ के पहलू में कंबल में ओढ़ा लेटा होता है। हाय हाय। कहती हैं सैयदा लेटी हुई थी और सरवरे कायनात वो ताजदारे कायनात सब्ज पोशाक ओढ़े मुखड़ा छुपाए, हाय मुखड़ा छुपाए अपनी माँ के पहलू में लेटे हुए थे। मैं आगे बढ़ी, सलाम दुआ हुई। उन्होंने भी पूछा तेरा नाम क्या है? हलीमा। आई कहाँ से है? बनु साद से। उन्होंने भी कहा हलीमा मेरा बेटा यतीम है, खदशा है तेरी 2 साल की खिदमत का मुआवजा नहीं दे पाएंगे। मगर साथ ही उन्होंने कहा कि हलीमा है यतीम मगर है बड़ा अजीम, है बड़ा अजीम। जिस शाम से मेरे शिकम में आया था, जिस शाम से मेरे शिकम में आया था 70,000 फरिश्ते सुबह आकर सलाम करते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आके सलाम करते हैं। कभी अंबरिया कभी अंबिया की रूहें आती हैं और आकर कहती हैं आमीना तुझे मुबारक हो। कभी हूरें आती हैं, कभी हब्बा आती हैं, कभी हजरत आसिया आती है, कभी मरियम आती हैं और आकर कहती हैं ए आमीना तुझे मुबारक हो, तू 2 जहां के ताजदार की माँ बनने वाली है। हलीमा है यतीम मगर है बड़ा अजीम। लोगी अब कहती हैं मेरी निगाह वहीं थी, मिलेगा कुछ नहीं। और ये बात भी सच है लोगों, जब पेट का जहन्नुम ना भरा हो तो करामतें नजर नहीं आती, नजर नहीं आती। तो
वही थी, मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा लोगी? मैंने उसी बुझे से दिल से कहा मिलना क्या है? मैंने कहा हाँ लूंगी। हाय हाय हाय, जब मैंने कहा ना हाँ लूंगी, तो हलीमा मैं तेरे कदरा तो सदके। फिर सैयदा ने कहा अच्छा लोगी तो लो, फिर मेरे शहजादे को उठा लो। अब कहती हैं मैं आगे बढ़ी, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके। मैं आगे बढ़ी, मैंने दोनों हाथों से सब्ज पोशाक लपेटे हुए मुस्तफा को यूं हाथों से उठा लिया, ताजदारे कायनात को उठाया। मन ने चाहा कि जिस महबूब को गोद लिया है जरा जलवा तो देखूं, जरा मुखड़ा तो देखूं। कहती है मैंने एक हाथ की गोद बनाई और दूसरे हाथ से मैंने आपके बद्दुहा के मुखड़े से नकाब उल्टा। कहती है खुदा की इज्जत की कसम, जो ही मैंने नकाब उल्टा मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे। चश्माने मुकद्दस बंद थी, जो ही नकाब उल्टा आपने प्यारी प्यारी माज़ाग वाली आंखें खोल दी। आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, एक नूर हुजूर की आंखों से निकला और मेरे देखते ही देखते आसमानों में गुम हो गया। मैं हैरान हुई ये क्या था, ये क्या था। फिर अगले ही लम्हे मुस्तफा ने मुझे देखा, मैंने मुस्तफा को देखा, नजरों से नजरें मिली, वो मुस्कुरा पड़े, नाराए तकबीर, वो मुस्कुरा पड़े। नाराए रिसालत, हुजूर की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। वो आ गए हैं करीम बनकर, नसीब सबके संवर गए हैं। अरे लोगों क्या आलम होगा। कहती हैं वो मुस्कुरा पड़े, एक चेहरा बद्दुहा, ऊपर से मुस्कुराहट। कहती हैं बस इतना हसीन जलवा मेरी आंख ने कभी ना देखा था। बस आका का मुस्कुराना क्या था, मेरे दिल पे दीवानगी छा गई, मेरे दिल पे एक बेखुदी सी आ गई। मैं आका के हुस्न में ऐसी मस्त हुई, मुझे अपना आप ही याद ना रहा, अपना आप ही याद ना रहा। और दिल ने चाहा बिला इख्तियार इस प्यारे नन्हे से बद्दुहा के मुखड़े पर जो गुलाब से ज्यादा गुलाबी और पंखड़ियों से ज्यादा नरमो नाजुक लबों को चूम लूं, लबों को चूम लूं। और कहती है बेखुदी के आलम में मैंने मुस्तफा के लब चूम लिए। तो मदनी दा झूला जुलेंदी भी हो से, तू सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तक दी तेरी ये चुमेंदी भी हो से। लब चूम लिए। अरे लोगों कौन से लब, आओ रजब का महीना है, जरा मिराज की बात भी थोड़ी कर ले। कौन से लब। अल्लाह पाक ने फरमाया जा जिब्रील मेरे महबूब को ले आ। कौन जिब्रील, आसमानी कायनात का सरदार। कौन जिब्रील, नूरानी कायनात का सरदार अलैहिस्सलातु सलाम। जा बशर को ले आ, बशर को लेने आता है। आयत आते हैं हुजूर सोए हुए, हाय हाय हाय, हुजूर सोए हुए हैं। और मुझे लगता है जिब्रील अमीन का अकीदा भी पीर मेहर अली शाह जाता। चुप कर मेरे अली, इथा जा नहीं बोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। जिब्रील अमीन आए, हुजूर सोए हुए थे, दम मारने की जुर्रत ना हुई, पलट के गए। अर्ज करते हैं मौला तेरा महबूब तो सोया हुआ है, जरा उठाने के सलीके तो बता दे। खबर थी कि ये बारगाह वो बारगाह है, अगर मामूली सी बेअदबी हो गई तो सरदारी गई। आय आय अदबगाहे सवेरे आसमां, ऐसी बारगाह है तो मौला जगाऊं कैसे। अल्लाह पाक ने फरमाया ये काफूरी होठ कब काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील ये तेरे काफूरी होठ कब काम आएंगे।
اب حدیث نہیں ہے، میرا ذوق کہتا ہے۔ عرض کی ہوگی مولا ماتھا چوم لوں، خبردار رخسار چوم لوں، لبوں کی تو بات ہی چھوڑ دے، رخسار چوم لوں، خبردار مولا دستے مبارک چوم لوں، ہاتھ چوم لوں، خبردار۔ پاؤں کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے نیچے تلوا جسے مٹی لگتی ہے، ایک ہے اوپر چھت۔ تو عرض کی ہوگی مولا پاؤں نیچے تو مٹی لگتی ہے نا تلوے کو، اوپر سے چوم لو۔ جبریل جا، آج اس بشری پیکر کی عظمت بھی بتانی ہے۔ جبریل جا مصطفیٰ کے تلوے چوم، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے۔ ارے جس کے تلوے آسمانی کائنات کا سردار جبریل چومتا ہے تو اس کے لب چومتی ہے، تو اس کے لب چومتی ہے، جس کے تلوے جبریل چومے۔ ہائے ہائے ہائے، کہتی ہے میں نے لب چومے، خدا کی عزت کی قسم لبوں سے لب کیا ملے، آقا کے ہونٹوں کو کیا چومنا تھا، ادھر ہونٹ مس ہوئے، ادھر میرے اندر ایک کرنٹ دوڑ گیا، ایک بجلی دوڑ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جسم جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، مصطفیٰ کے لب چومے، دیکھتے ہی دیکھتے گوشت آ گیا، گوشت آ گیا، چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور میں نے اگلے ہی لمحے مصطفیٰ کو دودھ بھی پلانا شروع کر دودھ بھی پلانا شروع کر دیا۔ سیدہ نے پوچھا حلیمہ میں دے کچھ نہیں سکتی، لوگی؟ یہ بند کر جائے، کو بند کر جائے، نہیں ابھی آپ نے کھولی ہے دوبارہ، دے کچھ نہیں سکتی لوگی، یہ بند کر جائے۔ عرض کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سیدہ تو یقین کر لے مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ محبوب میری گود میں ڈال محبوب میری گود میں ڈال دے۔ انہوں نے کہا اچھا تو جا پھر لے جا۔ ارے لوگو جب مصطفیٰ مل جاتے ہیں تو پھر انداز اور ہوتے ہیں، انداز اور ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں میری چال ہی بدل گئی، میں خوشی خوشی باہر آئی، جب باہر آئی تو حارث مجھے دیکھ کے حیران ہو کے کہتے ہیں یہ وہی ہے جو اندر گئی تھی، یہ وہی ہے جو اندر گئی تھی۔ اندر گئی تھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پلٹی تو خوبرو حسینہ۔ پوچھا حلیمہ یہ تبدیلی کیسی؟ کہتی ہے میں نے کہا حارث اونٹنی پہ کجاوا سجاؤ، کوئی بڑی نعمت آج ہاتھ لگ گئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں حلیمہ سچ ہے، بہت بڑی نعمت لے کے آئی ہو۔ وہ اونٹنی پہ کجاوا سجانے لگے، مجھے سمجھ نہ آئے کہ مولا تیرا شکر کیسے ادا کروں، دل باغ باغ تھا۔ اچانک میری نظر کعبے پہ پڑی، وہ کجاوا سجا رہے تھے، دل سے آواز آئی چلو کعبے کا طواف کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں اسی طرح پوشاک میں لپٹے مصطفیٰ کے مکھڑے کو لپیٹے ہوئے اپنی گود میں لیے کعبے کی طرف گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کہتی ہیں کعبے کی طرف گئی، جو ہی صحن کعبہ میں اتری تو میں نے کیا دیکھا، مصطفیٰ کو آتا دیکھ کر کعبہ اور کعبے کے بت مصطفیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ ارے میرے امام العاشقین احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی جذباتی بات نہیں کی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب ذرا کعبے کا کعبہ۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ حلیمہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کعبے نے مصطفیٰ کو سجدہ کیا۔ پھر کعبہ، آپ اندازہ کریں عالم کیا ہوگا حلیمہ کی حیرانگی کا، کیا عالم ہوگا۔ کعبہ اٹھا، میں طواف میں مصروف ہو گئی، میں طواف کیا۔ طواف کے بعد کیا کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ اب ماں ہے،
गोद में नौज़ायदा पोशाक में लिपटा हुआ है, हजर अस्वद का बोसा लेना है तो कैसे लेंगी? ऐसे ऊपर से। कहती हैं हुजूर गोद में थे, मैंने ऊपर से हजर अस्वद का बोसा लिया और पलटी। 2 कदम चली तो दिल में ख्याल आया क्यों ना मोहम्मद को भी बोसा दिला दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय 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 हाय। अरे आओ, हम जाते हैं ना, आप लोग जाते हैं आशिक लोग हुजूर की जालियों की, कुर्बान जाए शाह साहब हुजूर किबला, ये भी शायद कोई इम्तिहान है। अगर आप सरकार के मुखड़े की तरफ मुंह करके खड़े हो तो काबा पुश्त पे आता है, काबा पुश्त पे आता है। और अगर काबे की तरफ मुंह करें तो यार के मुखड़े को पुश्त होती है। मुझे लगता है वो देखना चाहता है कौन है सवाब वाले, कौन है यार वाले। कोई सवाब लेने जाता है, कोई यार राजी करने जाता है। बस पता चल जाता है जो इधर खड़े होते हैं वो यार के मुखड़े के मुश्ताक हैं, जो उधर रुख करके खड़े होते हैं वो सवाबों के चक्कर में पड़े हुए हैं। चलो इस पे हम नहीं लड़ते। और आप जाते हैं, जिन्होंने हज किया उम्रा किया वो जानते हैं, वो शुरते पकड़ के अगर आप उधर खड़े हैं ना तो वो यूं पकड़ के घुमा देते हैं, कहते हैं हाजी काबा हिना, काबा इस तरफ है। सुभान अल्लाह। चलो हम नहीं लड़ते कि जब एक तरफ यार का मुखड़ा हो और एक तरफ काबा हो तो फिर चेहरा किधर करना है। हम नहीं लड़ते, किसी जन्नती से पूछ लेते हैं, किसी जन्नती से पूछ लेते हैं, भाई हजर अस्वद जन्नती है ना, हजर अस्वद जन्नती है तो आओ उससे पूछ लेते हैं। कहती हैं दिल में ख्याल आया कि हजर अस्वद को बोसा दिलाती हूँ। कहती हैं मैं हजर अस्वद के पास आई, उसके मुकाबिल खड़ी हो गई और हुजूर को बोसा दिलाने की नियत से हुजूर के मुखड़े से पर्दा हटाया। मैंने अभी पर्दा हटाया, अभी इस नियत से कि आगे बढ़ती हूं, मगर खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा का बेनकाब जलवा देखकर हजर अस्वद ने काबा छोड़ दिया, निकल कर मुस्तफा को चूमने लगा। हुजूर के बोसे लेने लगा। गोया उसने बता दिया अरे काबा हाथ में हो, उसका दामन भी हो, और जब यार का मुखड़ा आ जाए, जब यार का चेहरा हो फिर काबे की तरफ नहीं, खुद काबे की तरफ निकलते। और यहाँ एक और बात समझा दूं, एक और बात समझा दूं। किसी ने शेर लिखा है, इसकी भी थोड़ी करेक्शन कर लें। किसी ने कहा हजरे अस्वद नू किसे सवाल कीता, किसे सवाल कीता तैनू क्यों दुनिया चुमदी है। उन्हें अगों जवाब दिता मैनू इस लई दुनिया चुमदी है, मैनू चुमिया कमली वाले ने। यही कहते हैं ना। मगर ईमान से बताएं पहले किसने चूमा? हाय हाय हाय। अरे कमली वाले ने चूमा तब चूमा जब कभी उम्रे पे आए, जब कभी जवान हुए, जब कभी तवाफ किया, वो तो तब चूमा था। पहले किसने चूमा? हजर अस्वद ने चूमा। जब काबा छोड़कर मुस्तफा का मुखड़ा चूमा, आवाज आई हजर अस्वद तूने यार चूमा है, दुनिया तुझे चूमे। तूने यार चूमा है, ये दुनिया तुम्हें चूमेगी। हाय हाय। तो करेक्शन क्या हुई? करेक्शन क्या हुई? हजरे अस्वद ने अगों जवाब दिता मैनू इस लई दुनिया चुमदी है, मैं चुमिया कमली वाला, मैं चुमिया कमली वाला। हाय हाय हाय। फिर कहती हैं मैं पलटी। आओ जरा अदब सीखने वाले खुदा की कसम कुत्तों से भी सीख जाते हैं, जिनकी किस्मत में अदब है इस दर का, जिनके नसीबों में इस दर की गुलामी है, जिनके नसीबों में गुलामी है और इस दर का अदब है। खुदा की कसम अल्लाह उनके दिल में
ऐसी हिकमत, मारिफत और फरासत पैदा कर देता है, वो कुत्तों से भी सीख लेते हैं। सीखने वाले जानवरों से सीख जाते हैं, और जिनके नसीबों में इस दर का अदब नहीं है, इस दर की गुलामी नहीं है, फिर उन्हें कुरान की आयतें भी दिखाए तो खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिलों पर मोहर लग चुकी होती है। अरे आओ, अदब हमने क्या करना है, आओ जरा जानवरों का हाल देखो। इधर कजावा सज चुका है, सैयदा कहती है मैं आई, हुजूर गोद में थी। अब अदब का तकाजा क्या है कि शोहर आगे और बीवी पीछे, यही तकाजा है अदब का। कहती हैं हारिस ऊंटनी पे आगे बैठे, मैं मुस्तफ़ा को गोद में लेकर पीछे बैठी। ऊंटनी को उठाएं, वो उठे ही ना, वो उठे ही ना। देर तक जिद्दोजहद करते रहे, उठे, हम परेशान हो गए, इसे हो क्या गया है। फिर एक रवायत में आता है कि जब उस पर तशद्दुद किया जाने लगा और उस पर उसको उठाने की कोशिश ज्यादा करने लगे, तो उस सवारी ने, ऊँटनी ने चेहरा घुमा के मेरी तरफ देखा और बइज़्ने इलाही बोली और कहती है हलीमा, जिसे पीछे लेके बैठ गई हो, जानती भी हो ये है कौन। एक रवायत ये है, और एक रवायत ये है जब देर तक उठाते रहे ऊँटनी ना उठे तो कहती है मेरे ही दिल में ख्याल आया, मैंने कहा हारिस आप जरा नीचे उतरे। हाय हाय, तरतीब बदल दी। हाय हाय हाय, लोगों जितने भी सजदे करने हैं कर लो, ईमान चाहते हो तो तरतीब बदल दो। 2 कदम पे ईमान है, बस तरतीब बदल दी। मैंने कहा हारिस आप पीछे बैठे, मैं हुजूर को लेके आगे बैठी। कहती है खुदा की कसम, जो ही तरतीब बदली मुस्तफा को आगे किया, मुस्तफा को आगे किया। पीछे बैठे वही ऊँटनी, सवारी जो उठने का नाम नहीं लेती थी, खुदा की कसम उठी और नाचने लगी, झूमने लगी, और उसने अपना चेहरा काबे की तरफ करके 3 सजदे किए। 3 सजदे किए, गोया सुभाने हाल से कह रही थी ए रब्बे कायनात तेरा शुक्रिया, तूने अपने यार की मुझे सवारी बना डाला, तूने कायनात के सरदार की सवारी बना डाला। फिर कहती हैं वो तब्दीली जो हुजूर के लब चूमने पर मेरे जिस्म में आई थी, हमने देखा आका ने कदम रंजा फरमाया ऊँटनी पर, वो जो हड्डियों का ढांचा थी देखते ही देखते गोश्त भर गया, सडोल हो गई, और उसकी चाल भी बदल गई। जो 2 कदम न चल सकती थी वो ऐसे चली जैसे हवा के दोष पे चलती है। कहती है चंद ही लम्हे गुजरे, चंद ही लम्हे गुजरे, वो दाइयां जो कई अरसा पहले वडेरों के, सरदारों के, अमीरों के, सरमायादारों के दांव पे जाने वाले जो समझते हम आगे हो गए, असल में पीछे तो वो होते हैं। वो जो लेके निकली थी, चंद लम्हे गुजरे, मैं उनके पास से यूं गुजरी जैसे हवा का झोंका गुजरता है, और मैंने गुजरते गुजरते उन्हें कहा अस्सलामु अलैकुम। हाय 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 हाय, लोगों बड़ा नुक्ता बताता हूं, मैंने क्या कहा अस्सलामु अलैकुम, जवाब क्या है वालेकुम अस्सलाम। लोगों ये हकीकत है, जिन्हें मुस्तफा मिल जाएं, जमाना वो हो या 1400 साल पुराना हो, जिन्हें मुस्तफा मिल जाए जमाने में उनकी रफ्तार जुदा होती है, उनकी उठान जुदा होती है, और अहले जमाना उनकी रफ्तार, उठान और परवाज को देखकर शरीयत भूल जाते हैं, शरीयत भूल जाते हैं। कहती है वो भूल गई, सलाम का जवाब क्या है, मेरी उठान देखकर, मेरी परवाज देखकर, मेरी रफ्तार देखकर शरीयत भूल गई। मैंने सलाम लिया, जवाब नहीं दिया। पूछती है हलीमा तेरी ऊँटनी तो चल नहीं सकती थी, सवारी मक्के गई थी, बदल आई हो,
सवारी बदलाई हो? कहती है मैंने चलते चलते कहा नहीं नादानो, सवारी वही है, आज सवार बदला हुआ, आज सवार बदला हुआ है। फिर मैंने बाजों के चेहरे देखे, बाजों के चेहरों पर मुझे देख के हसद आया और बाजों के चेहरों पे हसरत आई कि ये हमें क्यों नहीं मिल गया। अरे दुनिया के दरवाजों और अमीरों बटेरों की गदाई करने वालों को मुस्तफा नहीं मिलते, और जिन्हें मुस्तफा मिलते हैं पहचान ये है उनकी उठान जुदा होती है, उनकी उठान जुदा होती है, उनकी रफ्तार जुदा होती है। फिर कहती हैं दोपहर का वक्त था, मैं बनु साद के कबीले में दाखिल हुई। हाय हाय हाय, ये कबीला जिसके खेत जुड़े हुए थे, जिसके दरख्त खुश्क हो चुके थे। कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, मेरी ऊंटनी ने बनु साद के कबीले में क्या कदम रखा, मेरी आंखों ने नजारा देखा, वो उजड़े हुए खेत हरे भरे हो गए, दरख्त सरसब्ज़ और शादाब हो गए। फिर कहती है मैं घर में आई, दोपहर का वक्त था। वो आप किसने शेर लिखा हुआ है ना, हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। ये भी जज्बाती नहीं है, ये भी जज्बाती नहीं है। कहती है खुदा की कसम, मैं जब घर आई दोपहर का वक्त था, जहां लेटाने लगूं आवाज आए हलीमा ये सेज इस महबूब के काबिल नहीं है, समझ ना आए कहां लेटाऊं। फिर कहीं नहीं लिटाया, अपनी गोद में लेकर हुजूर के मुखड़े से नकाब उठाकर आका के हुस्न के जलवों में खो गई। पता ही ना चला शाम आ गई, शाम आ गई। लोगों सुन लो, अज़मत, रोशनी, फजीलत, दुनिया और आखिरत, सारी नेमतें उसके कदमों में है जो मुस्तफा का। कहती हैं पहला दिन था मेरे घर में मुस्तफा का, पहला दिन था। हारिस ने कहा हलीमा शाम हो गई है, बर्तन दो, दूध धो ले। कहती हैं मैंने रूटीन में वही पाव भर आधा किलो निकलता था, मैंने बर्तन दे दिया। मैं दे के पलटी, आवाज आई हलीमा ये तो भर गया है, दूसरा लाओ। मैं हैरान हुई, भर गया है। दूसरा लाई, आवाज आई ये भी भर गया है, तीसरा लाओ। कहते हैं खुदा की कसम, पहली शाम और पहला दिन था मुस्तफा का मेरे घर में। घर के एक एक करके सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म होने का नाम ना ले। यूं लगा आका की आमद क्या थी, मेरे घर से दूध की नहरें जारी हो गई, नहरें जारी हो गई। पहली शाम थी, पहली शाम, पहली शाम थी। मेहमान अजीम था, घर में दिया जलाने के लिए तेल न था और मांगने की आदत न थी। परेशान होने लगी, अजीम मेहमान है, अंधेरे में रहेगा। होता नहीं ऐसा कि कोई प्यारा आ जाए तो मेजबान परेशान होता है, अंधेरे में रहेगा। कहती हैं हुजूर को गोद में लिए परेशान हो रही थी कि आज दिया नहीं जलेगा और मेरा महबूब अंधेरे में रहेगा। कहती हैं खुदा की कसम, इस परेशानी में बैठी थी कि अंधेरा मेरे घर में आया। जो ही अंधेरा मेरे घर में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा, मुस्तफा के प्यारे नन्हे से बद्दुहा के मुखड़े से नूर की शुआएं निकलने लगी। जो जो अंधेरा घर में आता जाए, मेरा घर जगमगाता जाए। कहती हैं एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मोहल्लेदार आ गए। उन्होंने आके कहा हलीमा तेरे पास तो दिया जलाने के लिए तेल ही नहीं होता था, अब इतना तेल आ गया है, इतना तेल आ गया है। सारी सारी रात तेरा घर जगमगाता रहता है, रोशन रहता है, सारी रात दिया जला के रखती हो, रात को दिया बुझा दिया करो। आए रात को दिया बुझा दिया करो। मैंने कहा नादानो,
جب سے یہ میرا شہزادہ آیا ہے حلیمہ نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں، سب تابانیاں میرے شہزادے کے مکھڑے گی۔ وقت کافی ہو گیا، پھر ابھی کبھی موقع ملا تو یہاں سے آگے سٹارٹ لے لیں گے، مگر یہاں ایک پیغام دیتا چلوں۔ ان کے 5 سال ہیں، ان کی زندگی کے 4-5 سال ہیں، 1 گھنٹے میں تو بیان نہیں نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بس یہاں ایک پیغام لے لیں، ایک پیغام لے لیں۔ زمین خشک تھی، ہریالی کس نے دی؟ اللہ نے۔ حلیمہ کے جسم کو گوشت اور دودھ سے کس نے بھرا؟ اللہ نے۔ حجر اسود کس کے حکم سے کعبہ چھوڑ کر مصطفیٰ کو چومنے لگا؟ اللہ کے حکم سے۔ زمین سرسبز و شاداب کس کے حکم سے ہوئی؟ تو پھر اور جشن کسے کہتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ۔ اور جشن کسے کہتے ہیں؟ ارے یہی تو جشن ہے جو رب منا رہا تھا۔ تم اپنے طور اور اپنی بساط کے مطابق مناؤ، وہ اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کی آمد پر۔ اور میسج یہ ہے، ارے جب تک یہ گھر، حلیمہ نے بتا دیا، گھر میں اندھیرے ہوتے ہیں، جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے اندھیرا تھا، غربت تھی، افلاس تھا، پریشانیاں تھیں، دکھ درد تھے۔ جس دن مصطفیٰ آ گئے گھر جگمگا اٹھا، بہاریں آ گئیں، دودھ کی نہریں آ گئیں، عزتیں آ گئیں، عظمتیں آ گئیں۔ امت مسلمہ، تو دنیا کی حرص میں، تو دنیا کی لالچ میں، تو دنیا داروں کے دروازوں پہ عظمت تلاش کرتی ہے، دل اندھیر نگری ہے، کوئی مقصد نہیں زندگی کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کوئی کاروبار میں لگا ہے تو اس نے ساری زندگی کا مقصد کاروبار سے گھر تک زندگی بنا رکھا ہے۔ کوئی آفس میں جاتا ہے تو صبح اٹھ کے آفس گیا اور گھر آ گیا۔ دنیا دنیا دنیا۔ لوگوں، اگر چاہتے ہو عزتیں تمہارے قدم چومیں، اگر چاہتے ہو دنیا کی ہر خیر تمہارا قدم چومے، فضیلت رفت تمہارے قدم چومے، اور اندھیرے چھٹ جائیں، اجالے پیدا ہو جائیں، سارے در چھوڑ دو، اس اندھیر نگری میں مصطفیٰ کا پیار بساؤ، مصطفیٰ کا پیار بساؤ، آقا سے محبت کرو، اور آقا سے محبت آقا کی اولاد سے ملتی ہے۔ یہ بھی سن لیں، حضور کی اولاد سے ملتی ہے۔ آقا کے ساتھ کتے کی بھی نسبت ہو تو اس کا بھی ادب کرو، یہی پیار ہے، یہی پیار ہے۔ ان گلیوں کا ادب کرو، ان کی اولاد کا کرو، ان کی اولاد کے در کے کتوں کا ادب کرو۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ میں تمام زائرین کو اور اس در سے وابستہ لوگوں کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ارے آپ کوئی یام نہیں ہے، آپ کوئی یام نہیں ہے، آپ کا تعلق مصطفیٰ کے اولاد کے ساتھ ہے، جگر گوشائے رسول سیدہ کائنات کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ ہے۔ مجھے کہا گیا آج کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، لوگ ان پر بڑے طعنے کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں حضور نے ذرا یہ یاد رکھ لیں، میں نے جو سٹڈی کی ہے، میرا ناقص علم یہ بتاتا ہے کہ سب سے مشکل امتحان، سب سے مشکل کام زندہ انسان کے لیے، چاہے وقت کا نبی ہو یا وقت کا ولی ہو، اس کی پہچان یہ مشکل ہے۔ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، نبی بھی ہو تو بدبخت ہوتے ہیں، اس کی مخالفت پہ لگ جاتے ہیں، نبیوں کو قتل تک کر دیتے ہیں، حریص لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، وہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر نہیں مانتے،
नबी का मुखड़ा देखकर नहीं मानते। हुजूर, किसी ने मुझे कहा कि काश मैं हुजूर के ज़माने में पैदा होता, तो मैंने उसे सादा सा जुमला कहा। मैंने कहा बस इतना देख ले कि आका ने फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला कुल्लि रास में आतिन सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। नबुव्वत बंद हो गई, मगर अल्लाह का मुंतखब बंदा आना ये बंद नहीं हुआ। मेरी उम्मत में हर 100 साल के बाद अल्लाह एक बंदा भेजेगा मुंतखब करके, उसे सजा के। वो अल्लाह का बंदा होगा, मुस्तफा का बेटा होगा, और मेरे दीन को असरे नो दीन की तजदीद करेगा। उसे मुजद्दिद कहा जाएगा। हर 100 साल के आखिर पे होगा। ये 100 साल के आखिर पे क्यों होगा? इसलिए कि इस उम्मत की औसतन उम्र 70-80 साल 90 साल है। एक इंसान पैदा होकर 100 साल में भरपूर जिंदगी गुजार के मर जाता है। लिहाजा जो भी इंसान पैदा होता है उसके दौर में भी एक अल्लाह का मुजद्दिद जिंदा होता है। पिछलों के लिए पिछला था। अगर हमारा अकीदा है कि मुस्तफा जो कहते हैं सच कहते हैं, सच कहते हैं, तो फिर सुन लो, आज भी कोई मुजद्दिद है, मुजद्दिद है। आप कहते हैं क़यामत के दिन नमाजों का पूछा जाएगा सबसे पहले, कुरान से पूछो। कुरान कहता है वो तो बाद में पूछेंगे, पहले आवाज आएगी यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। बता अपने दौर का इमाम पहचाना। उसके साथ था वो कहे नहीं मैं पिछले को कहता था। पिछला तेरे लिए था नहीं, पिछले से रहनुमाई लेनी थी, अपने दौर का पहचानना था। बिइमामिहिम, अपना लीडर ना। लोगों, खुदा की इज्जत की कसम, हम ऐसे इसलिए नहीं के शागिर्द हैं, इसलिए नहीं। आओ, आज के दौर का मुजद्दिद कौन है? डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। जाओ जाके किताबें उठा लो, उसकी पहचान पढ़ो। मुजद्दिद की पहचान बताई गई। आज माँ ने लिखा, हर कोई कहेगा मैं मुजद्दिद हूं। जिसके साथ 4 बंदे लग गए वो कहेगा मैं मुजद्दिद हूं। तो कैसे पता चलेगा मुजद्दिद कौन है? तो उसकी पहचान में पहली पहचान ये होगी, जैसे हुजूर, जैसे पहले नबी आते थे तबकों के लिए, खित्तों के लिए आते थे। आका ने तबकाती तकसीम खत्म हो गई। हुजूर पूरी इंसानियत ही नहीं, पूरी खल्क के लिए नबी बन के आए। मुजद्दिद की अलामत होगी, या इमाम ने लिखा, वो किसी एक ग्रोह का लीडर नहीं होगा। जो ग्रोह की बात करता है वो मुस्तफा की सुन्नत पे नहीं। उसकी पहली पहचान ये है, उसका पैगाम पूरी उम्मत मुसलमान को वहदत के एक तस्बीह में परोना होगा। दूसरी पहचान, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा जितना सारे नबियों की मुखालफत की गई और सताया गया, मुझ अकेले की मुखालफत हुई। तो दूसरी पहचान ये है कि सबसे ज्यादा मुखालफत भी उसकी होगी, क्योंकि वो ग्रोहबंदियां तोड़ेगा और जिनकी सरदारियां जाएंगी वो फिर उसकी मुखालफत करेंगे, जैसे मुस्तफा की गई। वो इल्म में सबसे बड़ा होगा। और एक पहचान बताई, जितना कलम उस सदी में उसका चलेगा, रूए जमीन पर किसी दूसरे का नहीं चलेगा। ये मुजद्दिद की पहचान और में से पहचान है। आइए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, हम ऐसे मुजद्दिद नहीं कहते। मुखालफत तो नबी की भी होती है, और मुखालफत भी एक पहचान है मुजद्दिद की। उस पर कुफर के फतवे लगना पहचान है। बताओ, दादा साहब पे नहीं लगे? फरीदुद्दीन गंजे शकर पे नहीं लगे? गौसे पाक पे नहीं लगे? अरे अहमद रजा खां बरेलवी पे नहीं लगे? कौन है जिसे छोड़ा गया? और कुर्बान जाए, दाता साहब ने काबा दिखाकर जान छुड़ाई। और ये भी सुन लो, छोड़ी उन्होंने जिन्होंने देख लिया, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ी, आज तक नहीं छोड़ी। अरे हमें हैरानगी है, मिलाद की शब है और जमीन पे
हर मरकज पे मिलाद और इश्क़ मुस्तफ़ा की महफिल सजी है। ये ताहरुल कादरी इसमें मोहम्मद क्यों छेड़ता है? वो इसमें मोहम्मद का बयान जमीन पे कर रहा है और ऐन उस बयान में कहता है कि मैं अगर तख्ता सिया होता तो तुम्हें मोहम्मद लिख के दिखाता, और अगले ही लम्हे चांद के गिर्द, आसमानों के गिर्द, चांद के गिर्द बड़ा मोहम्मद लिखा जाता है और जमीन पे दिखाने वाला ताहरुल कादरी। और मैं उस मजलिस में शामिल था, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये खुश नसीबी है कि 40 से 50 सेकंड मैंने अपनी आंखों से उस इसमें मोहम्मद की जियारत की। माने वो जिन्होंने देखा, मानते वो हैं जो देख लेते हैं। बंदा जिंदा होता है फिर भी कोई नहीं मानता, ये बदनसीबी है, नहीं मानता। आइए इस बंदे का इल्म देखें और सारी बातें छोड़ देता हूं। 11-12 जिल्दों पर सीरत रसूल लिखी, 6 लाख हदीसें पढ़ी। कोई जमीन पे दिखा दो जिसने 6 लाख हदीसें पढ़ी हो, और सिर्फ पढ़ी नहीं, 6 लाख हदीसें इसलिए पढ़ी, 30 लाख हदीसें मुंतखब भी की इस उम्मत के लिए। 30 हजार हदीसों का सबसे बड़ा मुहद्दिस बना और 30,000 हदीसें मुंतखब की, और पूरा कुरान पढ़ा और उसका इंसाइक्लोपीडिया लिखा। इंग्लिश जुबान का इंसाइक्लोपीडिया लिखा गया था जो 1916 में शुरू हुआ। 1916 में एक जुबान, इंग्लिश की जुबान, जिसमें एक लफ्ज के लिए आपको सिर्फ 2-3 लफ्ज मिलते हैं एक मानी में। अरबी की जुबान में 10,000 मानी मिलते हैं। 4 सदियां बीत गई एक इंग्लिश का इंसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए, और 700 सफ़ों पर महज 4 सदियों में अपने दौर के हर प्रोफेसर ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, और 700 सफ़े पर इंग्लिश जुबान का इंसाइक्लोपीडिया लिखा 4 सदियों में। अरे आइए, एक कुरान की किताब है, वो हदीस है, वो सीरत रसूल भी लिखता है, वो 6 लाख हदीसें भी पढ़ता है, और पूरे कुरान का इंसाइक्लोपीडिया 5,000 मौज़ूआत पर लिख देता है। कुछ नहीं छोड़ता कुरान का, हर एक मौजू लिखता है। फिर मौजू खत्म होते हैं तो अल्फाबेट्स ले लेता है, हर एक हर्फ पर जितनी आयतें आती हैं आप फरमाते हैं कि मैंने उम्मत को मौलवियों से आजाद कर दिया। जिसे जो इल्म चाहिए वो कुरान का इंसाइक्लोपीडिया खोले, जिस चीज का इल्म चाहिए, वो अगर डॉक्टर है तो वो कुरान इंसाइक्लोपीडिया ले, वो गायनोलॉजिस्ट है, वो यूरोलॉजी का है, वो उसका कार्डियोलॉजी से ताल्लुक है, इंजीनियर है, कोई हो, कुरान खोले, अपने सब्जेक्ट को पढ़े, कुरान की सारी आयतें उसे मिलेगी, पता चलेगा डॉक्टरी भी कुरान बयान कर चुका है। और मुजद्दिद किसे कहते हैं? मगर खुश नसीबी उनकी है जो जिंदा मान लेते हैं, फिर मरने के बाद तो सारे ही मान लेते हैं। जी हाँ, तो ये मैं कहता हूँ कि 2 + 2 4 की तरह आपको बता दूँ। बात इतनी है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल, एक तरफ हुसैनी है, एक तरफ यजीदी। बस मरे तो किसके साथ थे? 2 जुमलों की बात। मौत आई तो साथ किसका था? अगर हुसैन का था तो परवाह न करो, हुर हुर होते हैं, फिर हुर हो जाते हैं। और अगर नमाजें भी पढ़ते रहे करबला में, हज भी रही, दाढ़ियां भी रहे, अमामे भी रहे, मगर हक की मुखालफत अल्लाह के बंदे को पहचाना ही नहीं, कुछ काम आएगा उनके? जी, अल्लाह पाक हमारे हाल पे करम फरमाए। अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे ही प्यारे हबीब की प्यारी लाडली का सदका पेश करते हैं। हमें हुजूर के मुअद्दबों में रख, और आपकी याद के साथ हमारी निस्बत यहाँ भी रहे, वहाँ भी। अल्लाह इस दर को आबाद रखे।
قیامت تک اس کا فیضان چلے، اس گھر کا بچہ بچہ مصطفیٰ کا فیضان لے کر پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ آباد رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔